Assalamualaikum grade 4, welcome to your English class. I hope that all of you are fine. Kids, today we are going to start chapter number 5 of Great Expectations, and the name of the chapter is Biddy. Kids, I am going to tell you the chapter in a short summary, okay? I'll tell you the story of the chapter, so you have to listen to it very carefully. Okay. After the accident, Pip's sister never spoke or saw clearly again. She used to sit all day by the fire quietly. Mr. Wopsle's niece Biddy came to take care of her. She had also taught Pip to read and write when he was little. Pip continued to work in the forge which he hated. Every year on his birthday, Pip used to visit Miss Havisham to see Estella, but she was never there. One day, Pip and Biddy went for a walk on the marshes. Pip told her that he wanted to be a gentleman and not Joe's apprentice or a blacksmith. He also told her about Estella and all the bad things which she had said to Pip. Biddy advised him to forget Estella. Pip said that he will tell Biddy everything until he becomes a gentleman. While they were walking and going towards home, Orlick saw them and wished to walk with them. But Biddy didn't like Orlick, so Pip didn't let him come with them. Pip often thought that Orlick had attacked his sister. Pip continued to work as Joe's apprentice for more than 3 years. On one Saturday night, Pip and Joe, along with their friends, were sitting in the inn. A strange gentleman came there and asked for Joe and his apprentice. He was the man whom Pip met on the stairs at Miss Havisham's house, but he didn't know Pip. His name was Jaggers and he was a lawyer. He came to do some business with Joe. Mr. Jaggers told Joe that someone wanted to take Pip from you so that he could become a rich gentleman. Joe agreed for Pip's goodwill. Mr. Jaggers asked Pip not to try to find out about the person. Mr. Jaggers said that Matthew Pockets will teach Pip that how to become a gentleman. Pip remembered that he had heard this name at Mrs. Havisham's place. Mr. Jaggers gave Pip £20, instructed him to come to London in new and nice clothes within a week, gave Joe some money for losing Pip's help, and left. Joe told this to Biddy as well. According to the promise made with Mr. Jaggers, no one asked any question about Pip's fortune. Okay, so kids, I am going to tell you the summary in Urdu as well. So kids, इस चैप्टर का नाम बिडी है, ठीक है. आपको याद होगा हमने 4th चैप्टर के एंड में पढ़ा था कि मिसेस जो को कोई सर पे मार के चला जाता है, ठीक है. अब उस एक्सीडेंट के बाद क्या होता है, मिसेस जो यानी कि जो पिप की सिस्टर है वो कभी भी सही तरह से बोल या देख नहीं सकती. वो बहुत वीक हो जाती है. वो पूरा दिन अकेली खामोश बैठी रहती है, ना वो अब गुस्सा करती है, यानी कि वो बिल्कुल बदल जाती है उस एक्सीडेंट के बाद, ठीक है. इतने और ज़ाहिर है वो कुछ कर नहीं सकती, वो बात नहीं करती, वो देख नहीं सकती सही तरह से. तो वो मिसेस जो की केयर करने के लिए ख्याल रखने के लिए मिस्टर वॉप्सल्स की नीस आती है एंड उसका नेम क्या होता है, बिडी, ठीक है. बिडी ने पिप को भी पढ़ना और लिखना सिखाया था जब पिप एक बच्चा था. और पिप भी उस टाइम पिप भी जो है वो फोर्ज में काम करता रहता है, लेकिन उसको ज़ाहिर है वो पसंद नहीं था. अगर आपको याद हो तो हर साल पिप अपनी बर्थडे पे मिस हैविशम के घर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पे स्टेला तो कभी भी नहीं होती, यानी उसे कभी स्टेला नहीं मिली अपनी किसी भी बर्थडे पे जब वो वहाँ पे विज़िट के लिए गया है. एक दिन क्या होता है, पिप और बिडी वॉक करने के लिए जाते हैं मार्शेस तक, ठीक है. पिप बिडी को सब बता देता है कि वो एक जेंटलमैन बनना चाहता है और वो जो का अप्रेंटिस यानी जो का स्टूडेंट या ब्लैकस्मिथ नहीं बनना चाहता वो. और पिप एस्टेला के बारे में भी बिडी को बताता है, ठीक है. ये सब बताता है कि एस्टेला ने उसको कैसे जो है बुरी बातें कही थी, कि पिप एक बहुत कॉमन सा लड़का है, ठीक है. बिडी पिप को समझाती है कि तुम एस्टेला की बातों की वजह से परेशान मत हो, ठीक है, और उसको तुम भूल जाओ क्योंकि वो उसने तुम्हें बहुत बुरी बातें कही, तो उन बातों को भी तुम भूल जाओ, ठीक है. पिप सेड अच्छा, पिप ये भी बिडी को बता देता है कि वो एक जेंटलमैन बनना चाहता है, ठीक है. और पिप ये सोचता है कि वो बिडी को अपनी हर बात शेयर करेगा जब तक वो जेंटलमैन नहीं बन जाता, ठीक है. वो जब घर जा रहे होते हैं तो उनको ऑर्लिक भी मिल जाता है रास्ते में. ऑर्लिक कि चाहता है कि वो भी उनके साथ वॉक करे, लेकिन बिडी को ऑर्लिक पसंद नहीं है, वो उसे अच्छा नहीं लगता. तो वो पिप से कहती है कि इससे कहो कि हमारे साथ ना आए, ठीक है. अब ऑर्लिक कौन है, हु इज़ ऑर्लिक?
ऑर्लिक इज़ द पर्सन हु यूज टू वर्क विद जो, ठीक है, हु वर्क्स विद जो एक्चुअली। याद है आपको ऑर्लिक कौन है? ऑर्लिक वही है ना जो जो का हेल्पर है फोर्ज में। और उसकी एक बार फाइट भी हुई थी मिसेस जो के साथ। फाइट तो नहीं हुई थी, बहस हो गई थी। ओके, फिर क्या होता है, पिप 3 साल से ज़्यादा हो जाते हैं। पिप जो है जो का अप्रेंटिस बन के यानी उसके स्टूडेंट की तरह फोर्ज में काम करता है जो के साथ। एक सैटरडे की रात को क्या होता है, पिप और जो अपने दोस्तों के साथ एक जगह पे बैठे होते हैं। इन एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, ठीक है, इन में बैठे होते हैं। वहाँ पे एक अजीब सा आदमी आता है, ठीक है, और वो जो के बारे में पूछता है कि जो कौन है और उसका अप्रेंटिस कौन है, यानी कि पिप, ठीक है। जो बताता है कि मैं जो हूँ और पिप भी बताता है कि वो उसका अप्रेंटिस है, ठीक है। अब वो जो आदमी होता है ना, वो ये पिप उसको पहचान जाता है। ये वो आदमी होता है जो एक बार पिप को मिला था सीढ़ियों में, जब एस्टेला पिप को लेके जा रही थी मिस हैविशम के रूम में। तो वो आदमी उसे मिलता है ना स्टेयर्स पे, और उसे कहता है कि तुम यू मस्ट बिहेव नाइसली, तुमने सही तरीके से बिहेव करना है, ये ठीक है, अगर आपको याद हो तो। ये वो आदमी होता है, लेकिन इस आदमी को पिप याद नहीं होता, तो वो पिप को नहीं पहचानता। लेकिन पिप उस आदमी को देख के पहचान जाता है कि ये वो आदमी है। अच्छा, अब उसका नाम जैगर्स था और वो एक लॉयर था, यानी एक वकील था, ठीक है। वो जो को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई बिज़नेस करने आया हूँ, ठीक है। वो कहता है कि तुमसे कोई चाहता है कि पिप को तुमसे ले ले, और पिप ताकि पिप जेंटलमैन बन जाए, ठीक है, क्योंकि पिप की जो एक्सपेक्टेशन है वो ग्रेट है, यानी कि पिप की जो हाई एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो उस पिप एक जेंटलमैन बनना चाहता है। जो इस बात पे मान जाता है, क्योंकि इसमें पिप की भलाई है, अगर वो एक अच्छा जेंटलमैन बन जाएगा। और मिस्टर पिप जैगर्स पिप को समझाते हैं कि तुम ये फाइंड आउट करने की कोशिश ना करना कि वो पर्सन कौन है, वो इंसान कौन है जो तुम्हें जेंटलमैन बनाना चाहता है, ठीक है। टाइम आने पे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, लेकिन तुमने कोशिश नहीं करनी है पता करने की। मिस्टर जैगर्स पिप को बताते हैं कि मैथ्यू पॉकेट्स जो हैं वो तुम्हें यानी कि तुम्हें समझाएंगे, तुम्हें ट्रेन करेंगे कि जेंटलमैन कैसे बनना है, ठीक है। पिप को ये नाम भी याद आ जाता है कि उसने ये नाम तो मिसेस हैविशम के घर में सुना था, ठीक है। ये नाम उसने मिस हैविशम के घर सुना था। और जब अगर आपको याद हो, डू यू रिमेंबर कि मैथ्यू पॉकेट्स कौन है? एक औरत कहती है कि मैथ्यू पॉकेट्स तो कभी भी मिसेस हैविशम को मिलने नहीं आता। तो मिस हैविशम गुस्से में कहती है कि वो सिर्फ तभी आएगा जब मैं मर जाऊँगी। डू यू रिमेंबर दिस किड्स? तो ये है मैथ्यू पॉकेट्स, लेकिन इसका करेक्टर अभी तक नॉवल में नहीं आया। ओके, मिस्टर जैगर्स जो है वो पिप को 20 पाउंड देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने अच्छे कपड़े पहन के लंदन में आ जाना और तुमने 1 वीक के अंदर अंदर लंदन पहुंच जाना है। वहाँ पे तुम्हें मैथ्यू पॉकेट्स मिलेगा और वो तुम्हें ट्रेन करेगा, ठीक है। और वो कुछ पैसे भी देता है जो को, क्योंकि जाहिर है पिप जो है वो जा रहा होता है जो को छोड़ के, तो इस वजह से उसे उसकी हेल्प, अब पिप की तो हेल्प नहीं होगी ना जो के पास। दैट्स वाई मिस्टर जैगर्स उसको कुछ पैसे देते हैं, ठीक है। और वो बिडी को, अच्छा, जब वो मिस्टर जैगर्स चले जाते हैं तो पिप और जो आते हैं, वहाँ पे बिडी भी होती है, तो जो बिडी को भी सब बताता है। लेकिन मिस्टर जैगर्स ने उन्हें मना किया होता है कि कोई भी पता करने की कोशिश ना करे, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, ना जो, ना बिडी और ना ही पिप। सब खामोश रहते हैं और कोई बात नहीं करता कि किसने ऐसा किया है या कुछ, ठीक है। सो किड्स, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर 5 बिडी। यू हैव टू अंडरलाइन ऑल द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ओके, इन आवर नेक्स्ट क्लास inshallah we will do its copy work. So take care kids. Allah